فلسطین میں جاری فسطائی اسرائیلی حکومت کے ظلم و جبر کے نئے باب کے حوالے سے لال سلام کی ویب سائٹ marxist.pk پر یار یوسفزئی کی طرف سے ترجمہ شدہ فرانس رائجر کا اپلوڈ کیا گیا آرٹیکل بعنوان فلسطین اسرائیلی ریاست کی جارحیت مرد آباد، طبقاتی بنیادوں پر عوامی مزاحمت منظم کرو پیش خدمت ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے ابھی تک 65 فلسطینی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں 16 بچے بھی شامل ہیں اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ غزہ کے علاقے سے مارے جانے والے میزائلوں کے نتیجے میں 6 اسرائیلی لقمہ اجل بنے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا نے ایک دفعہ پھر اسرائیل کی بمباری کو حماس کی جانب سے مارے جانے والے میزائلوں کے خلاف جائز کارروائی کے طور پر پیش کیا ہے۔ البتہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے اسرائیل اور فلسطین میں اس بحران کی شدت کی اصل وجوہات کے حوالے سے مکمل یک طرفہ موقف اپنایا ہوا ہے۔ اگر ہم جیرڈ کشنر، جو سابقہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد ہے اور مشرق وسطی کے حوالے سے اس کا مشیر اعلیٰ بھی رہا ہے، کی باتوں پر یقین کرتے تو ہمیں لگتا کہ اسرائیل اور فلسطین میں ہونے والے حالیہ واقعات سرے سے ہو ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح بے بنیاد پر اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشنر نے پچھلے مہینے وال سٹریٹ جریدے میں لکھا، ہم عرب اسرائیل تنازع کو اختتامی مراحل میں داخل ہوتا دیکھ رہے ہیں، جبکہ ابھی ہم ایک دفعہ پھر اسرائیلی ریاست کی جانب سے فلسطینی آبادی پر تشدد کی شدت دیکھ رہے ہیں۔ یہ امریکی سامراجیت کی بھرپور امداد کے ساتھ سامراجی امن مسلط کرنے کی کوششوں کا زہریلا نتیجہ ہے، جس کی بنیاد فلسطینی آبادی کی اکثریت کے حقوق دبانے پر کھڑی ہے۔ ٹرمپ اس پالیسی پر سختی سے عمل پیرا رہا تھا، جس کے دور صدارت میں امریکی ریاست نے یروشلم کو اسرائیل کا غیر منقسم دارالحکومت تسلیم کیا۔ نیتن یاہو نے آئینی طور پر اسرائیل کو یہودی ریاست قرار دیا، اسرائیل نے گولان ہائٹس کے علاقے پر قبضہ جمایا اور آخر میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے بیچ نام نہاد معاہدہ ابراہیم بھی طے پایا۔ در حقیقت اس معاہدے کا مقصد فلسطینی نوجوانوں اور غزہ مغربی کنارہ یعنی ویسٹ بینک، اسرائیل اور لاکھوں کی تعداد میں موجود فلسطینی مہاجرین کو نشانہ بنا کر یہ پیغام دینا تھا کہ تم تنہا ہو، تمہارے حقوق کبھی بھی تسلیم نہیں کیے جائیں گے اور تمہارے پاس صرف ایک راستہ بچا ہے، سر تسلیم خم کرنے کا راستہ۔ نیتن یاہو نے امریکی سامراجیت کی طرف سے غیر مشروط حمایت کا بخوبی فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی ریاست کی جانب سے زمینوں پر قبضے کے نہ رکنے والے سلسلے کو مزید تیز کر دیا۔ اس نے مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم کے گنجان آباد فلسطینی علاقوں میں دائیں بازو کے نسل پرست اور قوم پرست یہودی آبادکاروں کی تحریک کے مطالبات منظور کرانے کی حمایت کی۔ دوہرے معیار کا مظاہرہ کرتے ہوئے فلسطینی علاقوں اور مشرقی یروشلم میں موجود آبادی سمیت اسرائیل میں موجود فلسطینیوں کے خلاف بھی منظم تعصب اپنایا گیا۔ یہاں اسرائیلی ریاست دراصل ایک قبضہ مافیا کا کردار ادا کر رہی ہے، جس نے سڑکوں، پانی، مواصلات کے ذرائع، بجلی اور تمام قسم کی اشیاء کو، جن میں حالیہ عرصے کے اندر کرونا ویکسین بھی شامل ہو چکی ہے، اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ فلسطینی آبادی کے بنیادی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کے کچلے جانے کے خلاف ہونے والی کسی بھی مزاحمت کو دبانے کے لیے بنائے گئے جارحانہ قوانین اور ضوابط کا سہارا لے کر گزرتے وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ فلسطینی آبادی کو دبایا جا رہا ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران بے دخلی، مسماری، زمینی قبضوں اور روزمرہ کی بنیاد پر آبادکاروں اور انتہائی دائیں بازو کے صہیونیوں کی جانب سے اشتعال انگیزی کے خلاف جدوجہد کی ایک نئی لہر دیکھنے کو ملی ہے۔ پچھلے سال غزہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں نے بے مثال مزاحمت اور جرأت کا مظاہرہ کیا اور اسرائیلی گولیوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے رہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جبر کے ذریعے اس تحریک کو نہیں روکا جا سکتا، بلکہ الٹا جبر اس تحریک کو مزید پرعزم اور طاقتور کرتا ہے۔ نیتن یاہو نے ایک دفعہ پھر موقع کا فائدہ اٹھا کر تنازع میں شدت پیدا کر دی تاکہ اس اندرونی مخالفت کو قابو میں کر سکے جو اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ اس کی یہ چال کامیاب ہوگی یا پہلے سے بھی زیادہ
सियासी व इदारा जाती बहरान का बायस बनेगी, जो किसी न किसी मौका पर आकर इसराइली रियासत के बीचों बीच फट पड़ेगा। और इस सूरत के इम्कानात ज्यादा ही हैं कि ये चाल कामयाब होने की बजाय ज्यादा से ज्यादा बहरान का बायस बनेगी। जो बाइडेन और अमेरिकी रियासत की गहरी खामोशी अमेरिकी साम्राज्यत के मौकिफ का खुलेआम इजहार है। नई अमेरिकी हुकूमत अगर ट्रंप की पॉलिसियों में किसी किस्म की तब्दीली करने की कोशिश करती है तो इससे इसराइल और रुजती अरब बादशाहतों के साथ ताल्लुकात खराब होने का खतरा है, जो पहले ही ईरान के साथ अमेरिकी रियासत के मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की हालिया कोशिश से चौकन्ने हो गए हैं। हमेशा की तरह हालिया जंग में भी सबसे पहले सच का गला घोंटा गया। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए हालिया जारहियत का इल्जाम हमास के ऊपर लगाया गया, जिसकी मदद से अभी के लिए नेतन्याहू को सियासी हिमायत मिल सकती है, मगर इससे हकीकत को ज्यादा अरसे तक छुपाया नहीं जा सकेगा। कई हफ्तों से फिलिस्तीनियों के बुनियादी हुकूक के कुचले जाने का एक शदीद सिलसिला जारी है। मशरकी यरूशलेम से फिलिस्तीनी रिहायशियों को निकालकर उनकी जगह यहूदी आबादकारों को लाने की कोशिश में इसराइली फौज और पुलिस ने शेख जराह के इलाके में मुताद्दिद फिलिस्तीनी घरानों को बेदखल करने में यहूदी आबादकारों की मदद की। इस इलाके में फिलिस्तीनी रिहायशियों के दाखिले पर पाबंदी लगाई गई, जबकि मुसल्ला आबादकारों को आने जाने की खुली आजादी थी। फिलिस्तीनियों का एहतजाज जो आगाज में पुरअमन था, उसको इसराइली रियासत ने शदीद जबर के जरिए दबा दिया। निहत्ते मुजाहिरीन और मौका पर मौजूद दीगर तमाम अशखास को बच्चों समेत गिरफ्तार किया गया। मुजाहिरीन पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां चलाई गईं। एक तरफ फिलिस्तीनियों पर शदीद जबर जारी रहा, जबकि दूसरी जानिब आबादकारों ने भी पुलिस का खौफ किए बगैर उन पर आंसू गैस की शेलिंग की। इसराइली पुलिस ने फिलिस्तीनियों पर मशरकी यरूशलेम में वाक़े बाबे दमिश्क, जहां फिलिस्तीनी शहरी खसूसन रमजान के महीने में इकट्ठे होते हैं, के सामने जमा होने पर भी पाबंदी लगा दी, जो मजीद इश्तियाल अंगेजी का सबब बना। इस फैसले की कोई वजाहत नहीं दी गई। फिलिस्तीनियों ने इसका मतलब वही लिया जो दर हकीकत था, यानी शहर में उनसे एक अहम मुकाम छीनने की एक और कोशिश। इसके बाद पुरअमन अंदाज में शुरू होने वाले एहतजाजों पर इसराइली रियासत ने फिर से नाजायज जबर जारी रखा। जख्मों पर नमक पाशी करते हुए इसराइली फाशिस्टों और नस्ल परस्तों की तंजीम लिहावा ने कदीम शहर और मशरकी यरूशलेम में मार्च किया। हजूम ने इसराइली झंडे लहराकर मर्ग बर अरब जैसे नारे लगाए। इनमें से बाज खुलेआम अरबों की मारपीट करने की बातें कर रहे थे, या फिर अगर अरब ना मिले तो इसराइली बाएं बाजू के कारकुनान की। और वो इर्द गिर्द मौजूद लोगों से मुसलसल पूछ रहे थे कि क्या तुम बाएं बाजू से ताल्लुक रखते हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक एहतजाज से पहले दाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले लोग सोशल मीडिया पर अरबों को आज ही जला डाल दें और हथियार के इस्तेमाल की बातें कर रहे थे। फाशिस्ट पार्टी ओतज़मा यहूदत यानी यहूदी कुव्वत के कायद इतमार बिन जबीर ने इश्तियाल अंगेजी का मुजाहरा करते हुए अपने दफ्तर को फिलिस्तीनी इलाके शेख जराह के अंदर मुंतकिल कर दिया। ये पार्टी फाशिस्ट काख पार्टी का तसलसल है, जो अरबों के खिलाफ दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस होने के बायस 1994 में कलअदम करार दे दी गई थी। बिन जबीर ने कई दफा वाज़ेह अंदाज में इन ख्यालात का इजहार किया है कि वो फिलिस्तीनियों के शहरी हकूक और उनके वोट डालने या इसराइली पार्लियामान का हिस्सा बनने के हक की मुखालफत करता है। यरूशलेम का नायब नाजिम अरी कंग एक फिलिस्तीनी कारकुन को यह कहते हुए देखा गया कि यह अफसोसनाक है कि गोली तेरे सर में लगने की बजाय तेरे पैर में लगी है। हालिया पुलिस और फौज के इक़दामात दर हकीकत इसराइली रियासत की फिलिस्तीन दुश्मन पॉलिसियों का ही तसलसल थे। इसराइली इंतजामिया ने हरम शरीफ और मस्जिद अक्सा में घुसकर हालात को मजीद बिगाड़ दिया, जो इस्लामी मुकद्दस मकामात में सौम हैसियत रखते हैं। इसराइली फोर्सेस की जानिब से मस्जिद के अंदर आंसू गैस फेंक कर नमाज के लिए आए हुए निहत्ते फिलिस्तीनियों पर हमला किया गया। जवाबन वो भारी हथियार और हिफाजती सामान से लैस सिपाहियों का मुकाबला महज पत्थरों के जरिए करते रहे। मस्जिद अक्सा का इलाका यरूशलेम में हमेशा से इसराइली और फिलिस्तीनी तनाज़े का मरकज रहा है, और इसराइली इंतजामिया इससे बाखूबी वाकिफ थी कि वो क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने बगैर किसी जायज वजह के अपने दस्तों को रमजान के महीने में यहां घुसने का हुक्म दिया, उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि हमास उनके खिलाफ कदम उठाएगी, बिलखुसूस मजहबी वजूहात की बिना पर।
हमास ने इसराइली फोर्सेस को पीर के दिन यानी 10 मई शाम 6 बजे तक हरम शरीफ खाली कराने का अल्टीमेटम जारी किया। जब मुकर्रर वक्त गुजर गया तो उन्होंने जनूबी इसराइल और यरूशलेम की जानिब मिसाइल फायर किए, जिसका जवाब इसराइली फौज ने गजा के ऊपर हवाई बमबारी के जरिए दिया। मस्जिद अक्सा के वाक़े और हमास की जवाबी कार्रवाई से पहले ही अवाम पर यह बात वाज़ेह हो रही थी, हत्ता कि इसराइली अवाम पर भी, कि फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करना और उनके एहतजाजों को पुलिस के शदीद जबर के जरिए दबाना शऊरी तौर पर इश्तियाल अंगेजी का ही एक अमल था। अमवात की शरह देखकर दोनों अतराफ की अस्करी कुव्वत के अदम तवाजुन का अच्छी तरह से पता चलता है। यह मजमून लिखते हुए हमास के मिसाइलों से 6 इसराइली शहरी मारे जा चुके हैं। इस दौरान गजा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 65 फलस्तीनी बाशमूल 16 बच्चे मारे गए। मरने वाले इसराइलियों में से 2 अफराद लिद के शहर से ताल्लुक रखने वाले इसराइली फलस्तीनी थे, जिनके लिए बल्दिया बंकर नहीं बनाती होती। इसराइली फौज का दावा है कि वो सिर्फ दहशतगर्दों और हमास को निशाना बना रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि अगर उनके इरादों को सही मान भी लिया जाए तो फिर भी ऐसा करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। गजा 360 मुरब्बा किलोमीटर पर मबनी एक गुंजान आबाद इलाका है, जहां 20 लाख लोग आबाद हैं। यहाँ के शहरी पनाह लेने के लिए कहीं नहीं भाग सकते। इसराइली शहरियों के पास पनाह लेने के लिए बंकर मौजूद हैं और इसराइल में तामीर की गई जदीद रिहायशी इमारतों पर मिसाइल भी असर नहीं करते। जबकि दूसरी जानिब गजा में मुकीम फलस्तीनियों के पास इस किस्म के कोई हिफाजती इंतजामात नहीं है, जिसकी एक वजह इसराइल की जानिब से यहाँ पर मुसल्लत की जाने वाली मुआशी नाकाबंदी है, जिसमें तामीराती सामान पर पाबंदी भी शामिल है। इसराइल पर फायर होने वाले ज्यादातर मिसाइलों को हवाई दिफाई टेक्नोलॉजी यानी आयरन डोम के जरिए तबाह कर दिया जाता है, जबकि गजा के लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। यहाँ की आबादी मामूल के दिनों में भी इंतहाई शदीद अजियतों का शिकार रहती है। मुआशी पाबंदियों और गुंजान आबाद इलाका होने की वजह से गजा की मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं हो पाती। नतीजतन बेरोजगारी की शरह 50% है। मुआशी नाकाबंदी की वजह से यहाँ इलाज की सहूलियात और खुराक जैसी इंतहाई जरूरी अशिया की भी किल्लत है। अमरीकी रियासत और यूरोपीय यूनियन के सियासतदानों ने हालिया वाकयात का जवाब दोनों अतराफ के तशद्दुद की मुजम्मत करके दिया है। ये सरासर मुनाफकत है। यह तनाजा मुकम्मल तौर पर गैर मसावी है। एक जानिब इसराइल है जो मशरिक वुस्ता की सबसे ताकतवर अस्करी कुव्वत और तरक्की याफ्ता सरमायादाराना मुल्क है। दूसरी जानिब मजलूम अवाम है जो कब्जे के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास रियासत और फौज नामी कोई चीज है ही नहीं और जिनके घरों को या तो छीना जा रहा है या उनके ऊपर बमबारी की जा रही है। अगरचा हमास के मिसाइल हमलों से इसराइली शहरियों को तकलीफ पहुंची है, मगर ये मिसाइल ज्यादातर इंतहाई सादा टेक्नोलॉजी से तैयार शुदा हैं, जो अपने तौर पर बनाए गए हैं और जिनसे पहुंचने वाला नुकसान इंतहाई मामूली होता है। हमास की जानिब से इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रोपेगेंडे की खातिर होता है। इसराइली फौज के मुताबिक फायर किए जाने वाले मिसाइलों के 90% को दिफाई टेक्नोलॉजी ने तबाह कर दिया था। हमास की जानिब से मिसाइल हमलों का मकसद इसराइल को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है और ना ही ये इसराइली कब्जे के खिलाफ लड़ने की गर्ज से फायर किए गए। नेतन्याहू की तरह हमास भी अपनी खोई हुई साख बहाल कराने की कोशिश कर रही है, जो खुद को फलस्तीन की कौमी जिद्दोजहद के सिपा सालार के तौर पर पेश करती है। दर हकीकत हमास के साथ साथ अब्बास और फतह जैसी बदउनवान क़यादत की मकबूलियत को भी फलस्तीनी नौजवानों की खुदरो तहरीकों ने मुसलसल कम किया है। फलस्तीन और इसराइल दोनों के अंदर आम नौजवानों के जरिए ही अवामी मुजाहमत और जिद्दोजहद मुमकिन है। हालिया वाकयात के पेश नजर बहुत से अफराद बाशमूल कई फलस्तीनी आलमी बरादरी से दरखास्त कर रहे हैं। वो उम्मीद कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हकूक की NGOs, अमरीकी रियासत, यूरोपीय यूनियन इसराइल को रोकने के लिए मदाखलत करेंगे, मगर ये उम्मीद एक शराब के अलावा कुछ नहीं। इसराइल मशरिक वुस्ता में मगरबी साम्राज्यत का सबसे बाएतमाद शराकतदार है। अमरीकी रियासत और यूरोपीय यूनियन ने पहले ही यह जाहिर कर दिया है कि वो किसी तरह से भी फलस्तीनी आजादी की हिमायत करके इसराइल के साथ अहम इत्तेहाद को कुर्बान नहीं करेंगे।
अक़वाम मुत्तहिदा मुख्तलिफ साम्राज्यी कुव्वतों के बीच समझौता कराने वाले इदारे के अलावा कुछ नहीं, जो दोनों अतराफ को बेअसर तनबीहात जारी करने और नरम अल्फाज में गुजारिशात करने के सिवा कुछ करने का अहल नहीं है। फलस्तीनियों को इससे चंद खोखली बयानबाजियों और मगरमच्छ के आंसुओं के अलावा किसी चीज की भी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा ना तो फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी यानी PNA और ना ही हमास के मिसाइल फलस्तीनी आजादी की जिदोजहद को एक कदम भी आगे ले जाने के अहल हैं। इसके बरक्स हमास के हमले इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के मददगार साबित हुए, जिसने इस बहाने इसराइल की आबादी को सेहूनी रियासत के गिर्द इकट्ठा करके अपनी बहरान ज़दा हुकूमत को आर्जी तौर पर मजबूत किया है। मजीद बरा ये हमले शेख जराह में फलस्तीनी जमीनों और घरों पर कब्जे और इस सिलसिले में पुलिस तशद्दुद से तवज्जो हटाने का बाइस बने हैं। इसराइल इसका फायदा उठाकर दुनिया के सामने खुद को बतौर मजलूम पेश कर रहा है। ये जिदोजहद के बासर तरीकाकार से भी तवज्जो हटाने का बाइस बने हैं, यानी अवामी मज़ाहमत के वो तरीके जो मशरकी यरूशलेम में फलस्तीनी नौजवानों ने इस्तेमाल किए हैं। कब्जे के खिलाफ लड़ने और बिल आखिर इसका खात्मा करने का वाहिद रास्ता फलस्तीनी अवाम को मुतहरिक करने का रास्ता है। ये फलस्तीनियों के अवामी एहतजाज ही थे जिन्होंने इस्राएली पुलिस को बाबे दमिश्क से वापस लौटने और फलस्तीनियों को दोबारा वहां पर जमा होने की इजाजत देने पर मजबूर किया। ये फलस्तीनियों के अवामी एहतजाज ही थे जिन्होंने शेख जराह में इस्राएली इंतजामिया को फलस्तीनियों की बेदखली मुलतवी करने पर मजबूर किया। फलस्तीनी इलाकों और इसराइल दोनों के अंदर अवामी एहतजाजों और हड़तालों को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। PNA ने हमेशा से इस किस्म की अवामी तहरीकों को रोकने की कोशिश की है, जिसकी यही वजह है कि ये नाम निहाद फलस्तीनी क़यादत की अहमियत को कम करते हैं। इसलिए अवाम को लाजमी तौर पर निचली सतह से मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। इसराइली नौजवानों और मेहनतकश तबके को यह बात समझने की जरूरत है कि फलस्तीनियों पर कब्जा और जबर उनके मफादात में नहीं है। ये कब्जे इसराइली हुक्मरान तबके की जानिब से खित्ते के मेहनतकश तबके को तकसीम करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने का एक हथियार है। इसराइली सरमायादार सहयूनियत और फलस्तीनियों से दरपेश खतरात को यहूदी मेहनतकशों और सरमायादारों के बीच मौजूद फर्क को धुंधला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये तासुर देते हैं कि उनके मफादात एक हैं, जो कि सरासर झूठ है। फ्रेडरिक एंगल्स ने एक जगह लिखा था कि जो लोग दूसरे लोगों पर जबर करते हैं वो खुद को आजाद नहीं कर सकते। वो ताकत जो दूसरों पर जबर करने के लिए इस्तेमाल हो वो हमेशा अपने भी खिलाफ ही जाती है। हमने जुलाई 2020 में देखा है कि किस तरह इसराइली यहूदी और फलस्तीनी नौजवान और मेहनतकश मिलकर सड़कों के ऊपर नेतन्याहू की करप्शन और मुआशी बहरान के नतीजे में मौजूद बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ निकल आए थे। नेतन्याहू की हुकूमत ने इसके जवाब में वही पुलिस और यासाम के खसूसी दस्ते तैनात किए जिनको अभी शेख जराह और मस्जिद अक्सा में फलस्तीनियों पर मजालिम ढाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जानिब फलस्तीनी नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद इस बात को समझ रही है कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता अवामी जिद्दोजहद और अवामी मज़ाहमत ही है। वो बढ़ते हुए अज़्म और सरकशी का मुजाहिरा कर रहे हैं। ऐसा करते हुए वो करप्शन में लिथड़े हुए और उन बेकार और बेअसर तरीकों का पर्दा भी चाक कर रहे हैं जो हमास और फतेह जैसी नाम निहाद फलस्तीनी क़यादतों ने अपनाए हुए हैं। फलस्तीनी नौजवानों और मेहनतकशों की अवामी जिदोजहद में इनकलाबी तब्दीली का यह अमल अब गजा और मगरबी किनारे के बाहर भी वकूअ पज़ीर हो रहा है। 1948 में मुकर्रर की गई इसराइली सरहदों यानी ग्रीन लाइन के अंदर अवामी एहतजाजों की सूरत में सामने आ रहा है, जहां मशरकी यरूशलेम में जिदोजहद के साथ यकजहती और गजा के ऊपर बमबारी की मुखालफत की जा रही है। अभी अल जलील, इका, अल-अफूला, लिद और दीगर इलाकों से झड़पों और एहतजाजों की खबरें सामने आ रही हैं। जब तक फलस्तीनी अक्सरियत के ऊपर जबर जारी रहेगा, इसराइली सरमायादार इसराइली नौजवानों और मेहनतकशों को इसराइली रियासत के जराइम की हिमायत करने पर मजबूर करने की कोशिश करता रहेगा। वो इस जबर के जरिए मेहनतकश तबके को कौमी और मजहबी बुनियादों पर तकसीम करता रहेगा और यूं अपने इक़्तिदार और मराद को महफूज करने की कोशिश करता रहेगा। इसराइली हुक्मरान तबका किसी भी सूरत ये नहीं चाहता कि इस्तेज़ाल ज़दा अवाम तबकाती बुनियादों पर जुड़त कायम करें।
यहूदी और फलस्तीनी मेहनत कश अवाम और नौजवानों के पास आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता इनकलाब के जरिए सरमायादाराना इस्राएली रियासत का तख्ता उलट कर कब्जे के जारी सिलसिले का खात्मा करना और मशरिक वुस्ता के सोशलिस्ट फेडरेशन का कयाम करना है। ऐसा सिर्फ प्रोलेतारिया की बैनुल अक़वामियत और तबकाती जुड़त के जरिए मुमकिन हो सकता है, मगर तबकाती जुड़त कायम करने के लिए इस्राएली मेहनत कशों और नौजवानों को फलस्तीनी अवाम के हक के खुद इरादियत को तस्लीम करना पड़ेगा और जबर के खिलाफ जारी उनकी हालिया जिदोजहद की हिमायत करनी पड़ेगी। साम्राज्य नाम निहाद अमन के मंसूबों के जरिए कोई हल मुमकिन नहीं। आलमी साम्राज्यत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। गजा में होने वाली बमबारी और फलस्तीनी लोगों के जायज हकूक पर हमले के खिलाफ आलमी सतह पर तहरीक को मुनज़्ज़म करना होगा। कब्जे के खिलाफ लड़ाई अवामी एहतजाजों और हड़तालों के जरिए मुनज़्ज़म लड़ो। प्रोलेतारिया की आलमी जुड़त और मशरिक वुस्ता के मेहनत कश तबके को मुत्तहिद करने की जानिब बढ़ो।